Good morning class. In today's video we are going to start new chapter, that is chapter number 14, chemical effects of electric current. Okay. So in our previous classes we already have learned so much about electricity, and we all know that the objects which allows the current to pass through them are known as conductors, and the objects which do not allow the current to flow through them are known as insulators. Okay, so to test different type of object whether they conduct electricity or not, we use a tester. Okay, so what is tester? It is made up of a metal. Okay, from it has two ends. One end is a metal and other end is a insulator. Okay, and the insulator end has a bulb inside it. Okay, so whenever we place a metal end to any object and the bulb glows, that means the object is a conductor, and if the bulb does not glow, that means the object is an insulator. Okay, so let us start the chapter. Your elders might have cautioned you against touching an electrical appliance with wet hands. But do you know why is it dangerous to touch an electrical appliance with wet hands? Okay. We have learned earlier that the materials which allow the electric current to pass through them are good conductors of electricity. On the other hand, materials which do not allow the electric current to pass through them are poor conductors of electricity. In class 6, we have made a tester to test whether a particular material allows the electric current to pass through it or not. Okay, so do you recall how the tester helped us in deciding that? We found that metals such as copper and aluminium conduct electricity, whereas metal as rubber and plastic, wood do not conduct electricity. However, so far we have used our tester to test materials which were in solid state. But what about liquids? Do liquids also conduct electricity? Let us find out. So dear students, you all must have observed that whenever you are in wet position, okay, means your hands are in wet position, and your elders always try to stop you from touching the electrical appliances at that time when your hands are in wet कंडीशन. ओके, सो वाई इज़ इट सो? हम लोगों के जो पेरेंट्स होते हैं या फिर जो एल्डर्स होते हैं, कभी भी जब भी हम लोग नहा के बाहर निकल रहे हैं, ठीक है, या फिर हाथ धो के बाहर निकल रहे हैं बाथरूम से, तो उस टाइम पे वो लोग हमें टोकते हैं कि कभी भी गीले हाथों से जो है स्विचेस को टच नहीं करना है, या कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज है उनको गीले हाथों से टच नहीं करना है. ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो लिक्विड्स होते हैं वो भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं. ठीक है, जैसे कि जो वाटर है वो भी एक टाइप का कंडक्टर होता है. ठीक है, और अगर हमारे हैंड्स जो हैं वो वेट हैं और हम लोग स्विचेस को टच करेंगे तो देयर आर मैनी चांसेस दैट यू कैन गेट द इलेक्ट्रिक शॉक. ओके, आपको शॉक लग सकता है, तो इसकी वजह से वो आपको पहले से ही वार्न करने के लिए गीले हाथों से स्विचेस को टच करने के लिए रोकते हैं. ठीक है, so I think all of you have this type of tester in your houses, okay, which is used to test whether the circuit board is conducting electricity or not. okay, इसका ये जो एंड है, ये एंड इसका मेटल एंड होता है. ठीक है, ये यहाँ पे प्लास्टिक की कोटिंग होती है. ठीक है, और इसके अंदर यहाँ पे एक बल्ब होता है. ठीक है, कभी भी जब हम लोग इस एंड को किसी भी सर्किट बोर्ड में पुट करते हैं, ठीक है, तो अगर करंट फ्लो हो रहा होगा तो ये हमारा जो बल्ब है वो ग्लो करेगा. अगर करंट नहीं फ्लो हो रहा होगा तो ये बल्ब ग्लो नहीं करेगा. ठीक है, तो ये जो टेस्टर्स हैं ये तो सॉलिड मटेरियल्स को की इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए मेजर किए जाते हैं, है ना. और अगर हम लोगों को लिक्विड का कंडक्टिविटी मेजर करने के लिए कोई टेस्टर बनाना है तो वो हम लोग कैसे बनाएंगे, वो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में देखने वाले हैं. ठीक है,
सो हमारे पास एक एक्टिविटी दी गई है, एक्टिविटी 14.1, जिसमें हमें बताया गया है कि कभी भी कोई टेस्टर बनाते समय ये कुछ कुछ प्रिकॉशंस हैं जो हमें लेने चाहिए, जो हमें हमेशा याद रखने चाहिए कि इन प्रिकॉशंस की वजह से हमारा जो टेस्टर है वो अच्छे से काम कर सकता है। ठीक है, जैसे कि हम लोग देखते हैं एक एक करके। Join the free ends of the tester together for a moment. This completes the circuit of the tester and the bulb should glow. Okay. However, if the bulb does not glow, it means the tester is not working. Okay. So जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, ये जो टेस्टर है यहाँ पे ये फिगर है हमारे पास एक, इसमें टेस्टर बना रखा है। पहले इस लिक्विड को हटा देना है। ठीक है, अभी इस लिक्विड की बात नहीं करेंगे। तो फर्स्ट ये जो हमारा है ये एक सर्किट है हमारा, ठीक है, जिसमें ये बल्ब है, ये स्विच है, बैटरी है, यहाँ पे ये हमारी बैटरी है, ठीक है, और ये हमारा बल्ब है और ये इसके फ्री एंड्स हैं। ठीक है, इसमें स्विच भी प्लेस कर सकते हैं बट हमने नहीं किया है। ठीक है, तो अभी हमें करना क्या है, इस सर्किट में हमें क्या करना है, जब हमारा सर्किट बन के तैयार हो जाता है तो जो इसके फ्री एंड्स हैं, एक ये फ्री एंड एक ये फ्री एंड, इन दोनों को आपस में टाई अप कर देना है थोड़ी देर के लिए। ठीक है, और जब हम इसको टाई अप करेंगे तो ये हमारा बल्ब ग्लो करना चाहिए। ठीक है, इफ इट इज ग्लोइंग दैट मीन्स द सर्किट इज वर्किंग, इट इज इन अ प्रॉपर कंडीशन। ओके, एंड इफ आफ्टर जॉइनिंग द फ्री एंड्स द बल्ब इज नॉट ग्लोइंग दैट मीन्स द सर्किट इज फॉल्टी। ओके, कोई ना कोई वायर कहीं पे ब्रेक है। ठीक है, कहीं ना कहीं पे कोई वायर ब्रेक है जिसकी वजह से करंट फ्लो नहीं हो रहा है और ये बल्ब ग्लो नहीं करेगा। ठीक है, तो ये हमें एक प्रिकॉशन लेना है। ठीक है, दूसरा देखते हैं, कैन यू थिंक ऑफ पॉसिबल रीजन, इज इट पॉसिबल दैट द कनेक्शंस आर लूज। ठीक है, ये जो बैटरी में कनेक्शंस हैं यहाँ पे ये लूज हो सकते हैं। ठीक है, या फिर बल्ब में जो कनेक्शन है ये लूज हो सकते हैं, और द बल्ब इज फ्यूज्ड, बल्ब भी फ्यूज होने के चांसेस है। ठीक है, तब हमारा जो सर्किट है वो काम नहीं करेगा। और योर सेल्स आर कम्प्लीटली यूज्ड अप, ये जो हमारे सेल्स हैं इसकी बैटरी ड्रेन हो चुकी है ऑलरेडी। चेक दैट ऑल कनेक्शंस आर टाइट, हम लोगों को देखना है कि ये सारे के जो कनेक्शंस हैं ये अच्छे से जुड़े हुए हैं या नहीं। ठीक है, इफ दे आर देन रिप्लेस द बल्ब विद द अनदर बल्ब। नाउ टेस्ट इफ द टेस्टर इज वर्किंग और नॉट। ठीक है, तो जब ये सारी कंडीशन फुलफिल करेंगी तो हमारा जो टेस्टर है वो किसी भी लिक्विड को टेस्ट करने के लिए तैयार हो चुका है। ठीक है, तो अब हमें करना क्या है, हम लोग किसी लिक्विड को कैसे टेस्ट कर सकते हैं वेदर इट कंडक्ट्स और नॉट। हम लोगों को कुछ जो प्लास्टिक कैप्स होते हैं, जो बॉटल के प्लास्टिक कैप्स होते हैं वो कलेक्ट करने हैं। ठीक है, उसमें लिक्विड प्लेस करना है, जैसे कि इस फिगर में आप लोग देख पा रहे हैं, ये एक टाइप का प्लास्टिक कैप है। ठीक है, ये एक टाइप का प्लास्टिक कैप है। ठीक है, और इसमें जो है एक लिक्विड प्लेस किया है जो है लेमन जूस हमारा। ठीक है, यहाँ पे ये हमारी बैटरी है, ये हमारा बल्ब है, यहाँ से एक जो फ्री एंड है वो बैटरी से आएगा और इस लिक्विड में डिप कर दिया जाएगा। दूसरा जो फ्री एंड है वो पहले बल्ब को टाई अप करेगा और बल्ब के दूसरे एंड से वो दूसरे टर्मिनल से वो फ्री एंड वापस से आके इस लिक्विड में टच हो जाएगा। ठीक है बच्चों, जब भी हम लोग ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो उस टाइम पे ये हमेशा याद रखना है कि ये फ्री एंड्स ज़्यादा टाइम के लिए आपस में टच नहीं होने चाहिए, बट अगर वो ऐसा होगा तो बैटरी जो है वो जल्दी ड्रेन कर जाएगी और हमारा जो सर्किट है वो तैयार नहीं हो पाएगा और हमारा एक्सपेरिमेंट फेल हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो फ्री एंड्स हैं इनको ज़्यादा टाइम के लिए टाई अप नहीं रखना है। ठीक है, तो जब हम लोग ये दोनों फ्री एंड्स को किसी भी टाइप ऑफ सॉल्यूशन या फिर लिक्विड में डाल देंगे, डिप कर देंगे, जैसे कि हम लोगों ने एग्जांपल के लिए लेमन जूस लिया है, हम लोग विनेगर भी ले सकते हैं, तो हम लोग टेस्ट कर सकते हैं कि अगर ये बल्ब ग्लो करेगा, इफ द बल्ब ग्लोज दैट मीन्स द लेमन जूस इज द conductor of electricity, good conductor of electricity. Okay, and if we use vinegar also, then also the bulb will glow. Okay, and if we use water, then also the bulb will glow. So that means these different types of liquid shows that they are good conductor of electricity. Okay, in some type of liquid the bulb will ग्लो बट नॉट वेरी एफिशिएंटली। ओके, बल्ब लाइट प्रोड्यूस करेगा बट बहुत ज़्यादा लाइट नहीं प्रोड्यूस करेगा। तो इससे हमें क्या पता चलेगा
कि जो लिक्विड है वो कंडक्टर तो है बट वो बहुत अच्छा कंडक्टर नहीं है, क्योंकि उससे अच्छे से करंट जो है वो फ्लो नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से प्रॉपर सप्लाई बल्ब को नहीं मिल पा रही है, और जो उसको हीटिंग इफेक्ट चाहिए ग्लो करने के लिए वो उसको नहीं मिल पा रहा है। वो कब मिल पाएगा? जब प्रॉपर अमाउंट ऑफ करंट वो लिक्विड के थ्रू फ्लो होके फ्रॉम वन फ्री एंड टू अदर फ्री एंड ट्रैवल कर जाएगा। ठीक है, तो इन सच कंडीशन द लिक्विड विल बी कॉल्ड एज द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो ये हमारा एक एक्सपेरिमेंट था जिसमें हम लोग एक टेस्टर बना सकते हैं लिक्विड्स को मेजर करने के लिए, देखने के लिए कि वो कंडक्टर हैं या इंसुलेटर हैं। ओके, आई होप यू एंजॉयड दिस सेशन। ओके, थैंक यू।